सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। If we are reincarnating, how come there's more living beings today than there were before, right? Can you elaborate on that a little bit? So, like, for example, before I was born, where was I? You were in a different body, just like you had a body of a little boy, right? What's your name, by the way? My name is Basir. Basir, nice to meet you, Rama. Rama? Yeah. Nice to meet you. So, just like you had a body of a little Basir, teenager, Yeah. adulthood, like now you're a So mature. was I like another human being, or like When was you I were another li- human when you being? were So little? do you believe in reincarnation? Is what like before I was born? Yeah. I mean, So was I reincarnation, another human being, or- according to the Gita, reincarnation is something that happens as we leave. Like you had a body when you were a kid. That Okay. body is that body is here. yes, this is the body I was But in. you're not a little, It just grew up, you're right? not it just grew up, right? Yep. So the body changed. But Yep. are you? Is a different being in the body? जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब मैं कहाँ था? ये प्रश्न है इस मुस्लिम का एक इजरायली हिंदू सन्यासी से, जिस पर ये इजरायली हिंदू सन्यासी उत्तर देकर ये कहता है कि आपके जन्म से पहले आप एक अलग शरीर में थे। हो सकता है कि आप किसी छोटे बच्चे के शरीर में हो या फिर कुछ और शरीर में हो। इसके बाद ये मुस्लिम कहता है कि क्या आपका ये मतलब है कि मैं किसी इंसान के शरीर में था जब मैं जन्मा नहीं था? तो आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं? तो वापिस से ये इजरायली हिंदू सन्यासी कहता है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुनर्जन्म अमर आत्मा की एक निरंतर यात्रा है। आत्मा कभी मरती नहीं है, बल्कि बस पुराने हो चुके फिजिकल बॉडी को त्याग कर नई बॉडी धारण कर लेती है। ठीक वैसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं। अगले जन्म में मिलने वाला शरीर व्यक्ति के कर्मों और मृत्यु के समय उसकी मन की मुख्य स्थिति से तय होता है। You're No, the I'm the same, same right? being. I'm Yeah, the same exactly. being, and it's the same body. So- I just grew up. But my question is, before I had this body, like before Yeah. I was born, like if Yeah. you go back like 30, 40 years ago, I wasn't on this planet, right? So where was Yeah. I, according to? In a different body, just like you had a body of a little So child. you believe in but- reincarnation then? So I was another human being before? Yeah. Anything, yeah. Okay. That's in this body, it transmigrates from one body to the other. And just Okay. like you say, God is God eternal. God is eternal, yes. Just as God is eternal, we're eternal. So then my question becomes is if we believe, and I always wanted to ask this to somebody who believes in reincarnation is, if we are reincarnating, how come there's more living beings today than there were before, right? If we're just recycling, how come there's more animals now than like 1,000 you know years ago? that? There's more human beings than. Well, you we know count- that. have you We've tracked human population, right? So we know the human population like Yeah. 100 years ago. So Yeah. today, for example, we're over 8 billion people. Yeah. Just a few years back, we were just 6 billion people. So those no new 2 billion people Yeah. could not possibly just be coming from like other animals who are becoming human, because even the animals are growing in Well, numbers. it's not. First of all, it's not exactly like that, and also it's not like we're not stressing like counting all the humans, and our stress is that we've been entrapped in the cycle of this birth and death. Maybe there's life there. I mean, and by the time you reach Mars, there are going to be more living entities here. So it's not a practical way how to scientifically verify something that is beyond our experience. लेकिन ये मुस्लिम इसी प्रश्न को बार बार डिफरेंट एंगल से रिपीट करता है, और यहाँ पर खड़ी एक हिंदू महिला भी इसका सटीक जवाब देती है। कहती है कि सनातन के वेदों के माध्यम से कि जब आपका जन्म नहीं हुआ था तब आप किसी एनिमल की बॉडी में हो सकते हैं या फिर कुछ और भी हो सकते हैं। और आगे ये मुस्लिम प्रश्न करता है कि अगर सनातन धर्म के अकॉर्डिंग रीइंकार्नेशन सच है, यानी पुनर्जन्म सच है, तो ऐसा क्यों है कि आज से कुछ हजारों साल पहले कम इंसान थे, यानी कि इंसानों की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम थी पर आज ज्यादा है। अगर पुनर्जन्म है तो ये नंबर क्यों इंक्रीज हो रहा है और ज्यादा इंसान कहां से आ रहे हैं? तो इस पर ये इजरायली हिंदू सन्यासी उत्तर देते हुए प्राउडली कहता है कि सनातन के वैदिक ट्रेडिशन के अनुसार आत्मा मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु, पक्षी, कीट, जलचर, वनस्पति आदि अनेक योनियों में जन्म लेती है। कर्मों के अकॉर्डिंग कोई आत्मा पशु से मनुष्य बन सकती है और कोई मनुष्य से पशु बन सकती है और अन्य योनि में भी जा सकती है। इसलिए मानव आबादी बढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि नई आत्माएं बनाई जा रही है, बल्कि ये है कि जो जीव धरती से विलुप्त हो चुके हैं उन्होंने भी नया शरीर धारण किया हुआ है।
है। और इसके अलावा भगवान ने भी अनलिमिटेड शाश्वत सोल्स बनाई हुई है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि कौन है ये इजरायली हिंदू सन्यासी और ये किस कंट्री के मुस्लिम मेजोरिटी रीजन में जाकर सनातन का प्रचार कर रहा है। तो देखिए, इनके बारे में हमने पहले भी बात की हुई है। इनका नाम है रामचंद्र दास, एक इजरायली हिंदू सन्यासी जिसने जोड़िज्म के साथ साथ सनातन धर्म को अपनाया हुआ है, यानी कि यहूदी मजहब के साथ साथ सनातन को अपनाया हुआ है, जिसके चलते इन्होंने अपना नाम रामचंद्र दास रखा हुआ है। एट प्रेजेंट में ये अमेरिका की ऑस्टिन सिटी में सनातन का प्रचार कर रहे हैं, मुस्लिम मेजोरिटी रीजन में, जहाँ पर मुस्लिम इनके सनातन ज्ञान के आगे टिक नहीं पा रहे हैं। और अमेरिकन और इजरायली ऑडियंस कमेंट में इस इजरायली सन्यासी का समर्थन कर रही है, जहाँ पर एक यूजर इस डिबेट और इस इजरायली हिंदू सन्यासी के ज्ञान को सुनकर लिखते हैं कि जब आप किसी मुसलमान से मिले, बस उनसे ये पूछे कि कयामत के दिन आप अल्लाह को कैसे देखेंगे, जबकि अल्लाह के पास कोई शरीर नहीं होगा, या अगर आप अल्लाह को देख भी लेते हैं तो उन्हें पहचानोगे कैसे, और अगर क्या हो कि आपके अल्लाह असल में भगवान श्री कृष्ण ही निकले तो आप कैसा महसूस करोगे। ये सवाल आप इन मुस्लिम से कर सकते हो। और एक ने लिखा कि ऊर्जा स्थिर रहती है, कुछ जानवर विलुप्त हो जाते हैं लेकिन ऊर्जा स्थिर रहती है, वही ऊर्जा इंसानों में आ जाती है या फिर दूसरे जानवरों के रूप में वापस आ जाती है, इसलिए इंसानों की पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हो रही है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। Types of Islam, just like in the Vedic tradition, there are many. Are you Sunni, Shia, Sufi? Are there more types? I know just about these three, There's right? Sufism, which is some people don't think it's Islam. So Sufism has Mystical. It's a mystical word. It's not different than what I guess you're saying with Sunni and Shia. Sufism is like an ideological framework that's part of Islam, Right. right? Like certain expressions of it may not be in line with like the rules. So in Islam, there's both faith and there's practice. So like from a faith perspective, we're pretty similar. I mean, nuances, right? But with faith, an expression of faith, we say is practice. So I'm wondering if you guys have like practice as part of. इस वीडियो में रामचंद्र दास इस दूसरे मुस्लिम के सामने प्रश्नों के जवाब देता है। इसके बाद यहाँ पर दूसरे अमेरिकन कीर्तन के माध्यम से मेडिटेशन करने के लिए भी आ जाते हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं, रामचंद्र दास इजराइल में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भी शामिल हो चुके हैं और दूसरे इजरायली ज्यूज को रथ यात्रा में शामिल भी कर चुके हैं। और जब भी ये इजराइल में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्णा का कीर्तन करते हैं, तब ये इजरायली मुस्लिम्स को सनातन के शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान भी देते हैं, जैसे कि आप इन वीडियोस में देखिए। तो दिल से सल्यूट है इस इजरायली हिंदू सन्यासी को, यानी कि रामचंद्र दास को, जो बिना किसी डर और भय के मुस्लिम मेजोरिटी रीजन्स में जाकर सनातन का पीसफुली प्रचार कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।